بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے فقہیت ابھی کچھ رہ گئے ہیں، ہم ان کو پورا کریں گے۔ زمزم جس پاک نیت سے پی جائے گی اللہ اس کو پورا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زمزم لما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس کی نیت کو پوری کریں گے۔ زمزم کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس لیے کھڑے ہو کر پیا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ بھی جائز ہے، یا بھیڑ بھاڑ اور کیچڑ کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر کے زمزم پیا تھا۔ زمزم میں کفن وغیرہ کا کپڑا دھل کر لانا اور اس سے تبرک حاصل کرنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ مستدرک حاکم۔ اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں نفع بخش علم کا، کشادہ روزی کا اور ہر بیماری سے شفا کا۔ ایک مسئلہ اور ہے، اہم مسئلہ، عدت میں حج کرنا۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہو گئی تو اب کیا وہ حج کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب المدنی حفظہ اللہ وہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں اگر عدت پورا کر لیتی ہے اور اگلے سال جانے کے لیے حج کا معاملہ آسان رہے گا تو عدت پوری کر لے، لیکن اگر مشکل آئے گی اور حج کینسل ہو جائے گا یا پیسہ وغیرہ زیادہ کٹ جائے گا تو یہ عورت حج پر چلی جائے۔ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ کر رکھیں۔ اس کے بعد میں ہمارا ایک اہم موضوع آ رہا ہے غلطی نامہ۔ حج میں اور عمرے میں گھر سے نکلنے سے لے کر کے اور مکہ مدینہ پہنچنے تک بہت سارے مقامات پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی جھلک یا ایک جھلک ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، بینڈ باجے کے ساتھ حجاج کو رخصت کرنا، نظم خوانی کرنا، تکبیر کہنا، یہ ایک ہے۔ اس طرح سے لوگ اپنے ہندوستان میں خاص طور سے کرتے ہیں اور بہت تام جھام سے بہت سارے لوگ ان کو لے جا کر کے اور گاڑی پر بٹھاتے ہیں۔ اجتماعی تلبیہ پکارنا یہ درست نہیں ہے۔ آدمی اپنے اپنے حساب سے تلبیہ پکارے گا۔ پورے حج میں استباح کرنا اور اپنی چادر کندھے سے نیچے نکال کر کے کندھے پر ڈالے رہنا، دوسرے کندھے پر ڈالے رہنا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جہاں کرنا تھا وہاں کر لیا، اس کے بعد میں اپنا کندھا بند کر لینا چاہیے۔ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ میں نے سمجھایا ہے کسی زمانے میں، مجھے یاد آتا ہے 1986 میں اور اس کے بعد 1989 میں ایک آدھ لوگوں کو میں نے اس سلسلے میں سمجھایا ہے اور ان کو ٹوکا ہے۔ یہ عقیدہ کہ عورتوں کے لیے احرام کا مخصوص رنگ کا کپڑا ہوتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ جیسے سفید کپڑا پہننا یا ایک دم ہرا کپڑا پہننا۔ حلق یا قصر کے وقت بال کے ساتھ داڑھی کا حلق یا قصر کر لینا یا صرف داڑھی کا حلق کر لینا، اور اس کے علاوہ سر کے بال کو نہ کاٹنا یا نہ موڑنا۔ حدود عرفہ میں وقوف نہ کرنا،
अरफा के दिन रोजा रखना, वक्त ज़ाय करना, बैठे हैं, गप मार रहे हैं, फजूल बातें कर रहे हैं, या कि मोबाइल में गैर मुफीद चीज़ें देख रहे हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। तवाफ़े इफ़ाज़ा 8 तारीख ही को कर लेना। मुतव्विफ़ीन और ट्रैवल्स वाले ज़बरदस्ती ऐसा करवा देते हैं। अब उनको किसी ने फतवा दिया है या किसी ने इसका हुक्म दिया है, मैं तो नहीं जानता। किसी मौके पर मुझसे ये बात पूछी गई थी, इसे लोग गलती ही में शुमार करते हैं, फल्लाहु अलम। ज़मज़म के पानी से कफन धोकर के लाना, जमात खड़ी होने के बाद भी सही करते रहना। जब आदमी सही करे या काबा का तवाफ करे, जमात खड़ी हो जाए तो वो फौरन जमात में मिल जाए, नमाज पढ़ने के बाद में फिर आगे बढ़े। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर नमाज पढ़ने की बजाय कंकरियां चुनना, फोटोग्राफी करना। मैं इससे पहले भी एक जगह बताया हूं आपको कि फोटोग्राफी एक आफत और बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे आदमी के इखलास और लिल्लाहियत का, तकवा और तहारत का भरपूर इम्तिहान हो जाता है। मुज़दलिफ़ा में रात ना गुजारना, ये तसव्वुर कि शैतान को कंकरी मार रहे हैं, इसलिए इसको जूता और बड़े पत्थरों से मारते हैं। 11 ज़िलहिज 12-13 को सवाल से पहले कंकरी मार देना, जबकि 11, 12, 13 को सवाल के बाद कंकरी मारनी है। ऐसी सूरत में दम है। लेकिन अगर सवाल के बाद दोबारा ये लोग कंकरी मार देते हैं तो इनका रमी सही होगा और इन पर दम या कोई कफारा नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं मारा तो ऐसी सूरत में ये इनकी रमी सही नहीं होगी। गैर महरम मर्दों के साथ ख़वातीन का पर्दा न करना, ये बड़ा टेढ़ा मसला रहता है। वहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, होटलों में भी भीड़ भाड़ रहती है और सड़कों पर भी रहती है, हर जगह रहती है। तो चेहरा छुपा के रखना चाहिए। काबा और गिलाफे काबा को चूमना, बहुत से लोग पहुँचते हैं तो बहुत बेखुदी और बेताबी में काबा के पर्दे से चिमट जाते हैं, दीवार को चूमने लगते हैं, या एक ही जो पर्दा है उस पर सर रख करके और रोने लगते हैं, तो इसका कोई सबूत नहीं है। अय्यामे मिना में नमाज में कसर ना करना, तवाफ़े वदा के बाद उल्टे कदम काबा से वापस आना। कल मैंने बताया था इसके बारे में कि मज़ारों पर भी बहुत सी जगहों पर लोग ऐसा करते हैं और काबा के बारे में भी ऐसा करते हैं। ये कोई तकद्दुस नहीं है इसमें, ये इसका न कुरान से सबूत है, न हदीस से सबूत है, न इससे अपनी अजमत बढ़ेगी, न ही काबा की अजमत न बढ़ेगी न घटेगी। आदमी सीधे जाए, तवाफ करे, तवाफ करने के बाद में रकाते तवाफ पढ़े और फित्री और नेचुरल जैसे आदमी चलता है वैसे चल करके वापस आएगा। कुर्बानी करने की बजाय उसकी कीमत सदका कर देना, ये सोच कर कि कुर्बानी का गोश्त ज़ाय हो जाता है, ये गलत है। ये तसव्वुर और ये फिक्र गलत है। कुर्बानी करनी चाहिए और कुर्बानी करने के बाद में तो वहाँ बैंक के जरिया कुर्बानी होती है, गोश्त महफूज कर दिया जाता है और फिर फ़ुक़रा मसाकिन में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम कर दिया जाता है। सर का चौथाई हिस्सा मुड़वाना, ये भी एक आफत है और ये भी एक बलिया है कि थोड़ा सा मुड़वा लिया, एक चौथाई मुड़वा लिया या एक ही चंद बाल कटवा लिए और बस। इस पर सितम ये है कि समझाने पर लोग मानते नहीं हैं, चाहे अरब हो या अजम हो। कुछ नए मसाइल भी हैं।
जैसे बहुत ज्यादा ठंडी में कंबल ओढ़ना, आदमी कंबल ओढ़ ले लेकिन वो सर नहीं ढकेगा, मर्द सर नहीं ढकेगा ना चेहरा ढकेगा। ठंड की वजह से कान पर कुछ बांधना, अगर किसी ने कान पर कुछ लपेट लिया या पट्टी लगा ली तो इस पर फिदिया देना पड़ेगा। टिकट की बुकिंग में गलती होना, जैसे कि 12 जिलहिज के बजाय 11 जिलहिज को फ्लाइट बुक कर लिया और वो समझ नहीं सका कि किस दिन वापस आना है, तो ऐसी सूरत में उसे फिदिया दो फिदिया देना पड़ेगा। एक तो रमी का और दूसरे माबीत का। मीना में जो रात गुजारनी थी वो चली गई और कंकरी मारना वो चला गया, तो इनको 2 फिदिया देना पड़ेगा। हज के लिए इजाजत ना मिलना, जबकि हज फर्ज हो चुका है। आदमी फॉर्म भरता है लेकिन मंजूर नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में ये गुनहगार नहीं होगा। क्या जद्दा मीकात है? तो बहुत से लोग मीकात मानते हैं, जैसा कि मैंने सुना है, लेकिन जद्दा मीकात नहीं है। अगर कोई हज करने जा रहा था और उसके पास इजाजतनामा नहीं था और उसको चेक पोस्ट पर रोक लिया गया, तो वो वहीं पर कुर्बानी कर ले और लौट आए। ये ऐसे उस सूरत में है जब कुर्बानी के जानवर लेकर गए हों। मौजूदा जमाने में आमतौर से लोग कुर्बानी के जानवर लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि बैंक से बुकिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर ये शख्स वहीं से लौट आएगा। अगर ये हज फर्ज था, यानी फर्ज हज की अदायगी के लिए ये बंदा या बंदी जा रहे थे, तो बसूरत इस्तिताअत अगले साल करेंगे, अगले साल वो हज कर ले। और अगर अगले साल भी इजाजत नहीं मिली तो फिर इसके ऊपर गुनाह नहीं है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना हो सके तुम अल्लाह से डरो। और ये बंदा उतना डरा जितना डर सकता था, उतना किया जितना कर सकता था। छोटे बच्चों को पैम्पर पहनाना जायज है और इस पर दम नहीं। वो चड्डी की तरह से होता है, उसको पैम्पर पहना देते हैं तो इसका पाखाना पेशाब उसी में जज्ब होता रहता है, और चूंकि ये गैर मुकल्लफ है इसलिए इसके ऊपर दम नहीं आएगा। बुजुर्ग मर्द या बुजुर्ग औरत ये पैम्पर पहन सकते हैं, लेकिन अगर इस बात का खौफ है कि इनको पाखाना हो सकता है, पेशाब हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस पर दम आएगा। कहते हैं बुजुर्ग मर्द और बुजुर्ग औरत इनका पैम्पर पहनना, ताकि इनको खौफ या भीड़ भाड़ की वजह से पेशाब ना हो जाए और खराब ना हो जाए मस्जिद या इनका कपड़ा। अगर ये ऐसा करते हैं तो ऐसी सूरत में इनको दम देना पड़ेगा। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत, मस्जिद नबवी की ज़ियारत मसनून है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ शद्दे रिहाल करके जाया जा सकता है, यानी एहतिमाम के साथ कजावा कसना और उन मसाजिद की फजीलत को मद्दे नजर रखते हुए सफ़र करके जाना। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। और एक दूसरी हदीस में फरमाया कि मेरी इस मस्जिद की नमाज 1000 नमाज से बेहतर है दूसरी मसाजिद के मुकाबिल में, सिवाय हरम के, यानी हरम मक्की के। हरम मक्की की एक नमाज 1,00,000 नमाज के बराबर है। तो हरम मक्की की एक नमाज 1,00,000 के बराबर, मस्जिद नबवी की 1000 के बराबर और बैतुल मक़दिस की 500 नमाज के बराबर है। मदीना मुनव्वरा से हज या उम्रा का कोई ताल्लुक नहीं है। हाजी मस्जिद में दाखिल हो, अब ये मस्जिद में पहुंच गए, मदीना में पहुंच गए। वैसे एक बात मैं कहूं कि लोग मदीना
کا ज्यादा एहतमाम करते हैं। मैंने देखा है कि मक्का में जहां से मदीना के लिए लोग गाड़ियां पकड़ते हैं, बहुत शौक से, बहुत जज्बे के साथ जल्दी जल्दी सवार होते हैं और बड़े शौक के साथ जाते हैं। और एक बार मैंने इस झुरमुट में सफर भी किया है। तो यहाँ मदीना आना, असल काम तो मक्का ही में होता है। मदीना में आना, अपने होटल में जाना, फिर होटल से मस्जिद नबी में आना। हाजी मस्जिद में दाखिल हो, पहले दायां पांव रखे और ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली दुनूबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिक, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व बिसुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद में तहियतुल मस्जिद पढ़ना। तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद में अगर किसी नमाज का वक्त है तो उस नमाज की अदायगी करना, या नहीं है तो रोज़तुल जन्ना में नमाज पढ़ने की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया है कि रोज़तुल जन्ना ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और आपके घर के बीच में ये है। तो जो इस वक्त आपका मज़ार है, मज़ार नहीं कहेंगे बल्कि कब्र कहेंगे, कब्र शरीफ है। मज़ार से ज़हन दूसरी तरफ चला जाता है, वरना लोगों एतबार से सही है। जो कब्र शरीफ है तो वो उसके बीच में ये है, तो वहाँ जाना और वहाँ नमाज पढ़ने की कोशिश करना। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ने के लिए जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़ा हो और कहे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ काफ खिताब का सेगा आया है, ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है, लेकिन ये तस्वुर नहीं किया जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं या हाजिर हैं। इब्ने उमर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे तो इस तरह का सेगा इस्तेमाल करते थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकरिन, अस्सलामु अलैका या अबती। इस तरह के सेगे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इस्तेमाल करते थे। फिर दाहिनी तरफ एक कदम बढ़ाकर अबू बकर की कब्र के सामने खड़ा होना और उनको सलाम करना, अस्सलामु अलैका या अबा बकरिन, ऐ अबू बकर आप पर अल्लाह की सलामती हो। फिर एक कदम दाहिनी तरफ बढ़ाना और उमर की कब्र के सामने खड़ा होना, अस्सलामु अलैका या उमरू। ज्यादा देर तक यहाँ पर खड़े होकर दुआ न मांगे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने इसको मकरूह करार दिया है और इनका कहना है कि ये तो बिदात है, सलफ सालिहीन ने इसे ऐसा नहीं किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरे के जरिया से गायबाना सलाम भेजवाना जायज नहीं। लोग ऐसा करते हैं। एक बार मैं भी दिल्ली में इलाज के लिए गया था और जब वो साहब जिनसे मैंने दवा ली थी उनको पता चला कि हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में पढ़ते हैं, तो उन्होंने बहुत उल्फत और मोहब्बत का सबूत पेश किया और जब चलने लगे तो उन्होंने हमसे कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम कह देना। बहरहाल हम उनको कुछ समझा नहीं सके, लेकिन ये गलती लोग करते हैं और गलती इसलिए करते हैं कि इनको कोई बताता नहीं है और इनके उलमा इनसे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में या कहीं पर भी गायब को गायबाना सलाम भेजता है,
ऐसे ही वो लोग भी सलाम भेजने के लिए कहते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है। आपकी जिंदगी में ये चीज दुरुस्त थी, लेकिन आपकी वफात के बाद अब दुरुस्त नहीं है। साहबे किराम अपने झगड़ों या दूसरी परेशानियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास नहीं आते थे, न ही आपका वसीला लेते थे, न आकर के कोई शिकायत करते थे, बल्कि खुद ही उन मसाइल को हल करते थे। जिन लोगों की तारीख पर नजर होगी, खुलफाए राशिदीन की तारीखी को देख लीजिए। हजरत अबू बकर के बारे में कहा जाता है कि इनको जहर दिया गया था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत मुश्किलात का सामना किए थे थोड़ी ही मुद्दत में, और इनका बहुत अजीम कारनामा है कि उम्मत को संभाल लिया और उम्मत को बचा लिया। फितने इर्तिदाद ने हिला के रख दिया था। हजरत उमर का जमाना, हजरत उमर कितने अजीम, कितने कवी, कितने ताकतवर थे, कितने बड़े मुदब्बिर थे, लेकिन मेहराब में शहीद कर दिए गए। हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के साथ भी वही हुआ। कुरान पढ़ते हुए बलवाइयों ने आकर के उनको शहीद कर दिया। मनमानी, सब लोग हज पे चले गए थे और दिफा करने से हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने रोक दिया था। ठीक इसी तरह से हजरत अली का जमाना था। इनके बारे में तो मौरिखीन लिखते हैं कि ये चैन से नहीं बैठ सके। तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे, और इनके बाद में जो खिलाफत बनी उमैया और बनी अब्बासिया, कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े, कितनी कत्ल, कितनी खुरेसी और कितनी मुश्किलात और कितनी परेशानियां आई उम्मत पर। साहबे किराम अपने झगड़ों या दूसरी परेशानियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए थे, आपकी कब्र मुबारक के पास अपने मसाइल को पेश नहीं किया था, और दुआओं में आपका वसीला नहीं लेते थे, और ये नहीं कहते थे बेजाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। ये बात की इजाद है और ये बिदात है। कब्र मुबारक की दीवार को ना तो छुएंगे और ना ही उसको चूमेंगे। अगर ये इबादत या ताजीम के तौर पर कर रहे हैं तो ये बिदात होगी। मैंने इसको भी देखा है, लोग खड़े रहते हैं और चूमते हैं, या एक ही शिया जब आते हैं तो गंदगी फेंक देते हैं। हजरत अबू बकर और उमर की कब्र के सामने गंदगी फेंक देते हैं। लेकिन ये हमारी बात जो है ना 1985 से 89 के आसपास की है। उसके बाद ही से बहुत सख्त सिक्योरिटी कर दी गई थी और उसके करीब कोई नहीं पहुंच सकता है और न ही वहां फटक सकता है। नुकसान को दूर करने या नफा हासिल करने के लिए रसूल अकरम को ना पुकारें, सिर्फ अल्लाह को पुकारें। अल्लाह ताला ने कहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब तुमसे कहता है मुझे पुकारो, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे और हम तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। और ये मसाजिद अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के अलावा इनमें किसी की इबादत ना करो, किसी को ना पुकारो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का मुतालबा नहीं करेंगे कि आप उनके लिए दुआ करें या इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि आपकी वफात के बाद ये चीज़ मुनक़ते हो गई और रसूल अकरम की वफात हो चुकी है। इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मर जाता है, आदम का बेटा मर जाता है, तो जिन आमाल को अपने हाथ से करता था वो आमाल अब मुनक़ते हो गए, अब उन्हें नहीं कर सकता है सिवाय 3 अमल के। बकीउल गरक़त की ज़ियारत और उनको सलाम करना। तो बकी ये सहाबा का मदफन है, सहाबियात का मदफन है, और वहाँ जाना चाहिए और शरई तरीके से उसकी ज़ियारत करनी चाहिए। अगर चाहे तो उहुद चला जाए,
یعنی آدمی اگر چاہے تو احد، جبل احد پر چلا جائے اور شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرے اور ان کے لیے دعائیں کرے، دعائیں مانگے، لیکن ان سے کچھ نہ مانگے، وہ کچھ نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے لیے اب دعا کرنی ہے۔ مسجد قباء کی زیارت، اور اس کے بعد میں یہ مسجد قباء کے سلسلے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو پیدل اور کبھی سوار مسجد قباء آیا کرتے تھے، اور حضرت عمر بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نسائی کی روایت میں ہے سہل بن حنیف سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نکلا اور مسجد قباء آیا، اس میں اس نے نماز پڑھی تو یہ ایک عمرے کے برابر ہے۔ وہاں پر مساجد 7 کی بڑی شہرت ہے، 7 مسجدیں۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ 7 نہیں 6 ہیں، ممکن ہے کہیں پر کوئی چھپی مسجد کو بھی لوگوں نے شمار کر لیا ہو۔ تو یہ مساجد 7 کی لوگ بہت زیادہ زیارت کرتے تھے۔ اپنے خاص بھائی جن کا عقیدہ بدعتی ہے اور ہر جگہ اور ہر چیز کو بڑی تقدس کی نظروں سے دیکھتے، یہی لوگ ہیں۔ تو مساجد 7 کی زیارت مسنون نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں کثرت سے نماز پڑھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں جہاں کہیں بھی رہیں۔ اسی طرح سے مدینہ میں مسجد نبوی میں 40 نماز پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی 40 نماز پڑھ لے مسجد نبوی میں تو اس کی جہنم سے برات ہو جائے گی۔ تو 40 نماز پڑھنے والی روایت صحیح نہیں ہے، بعض لوگوں نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا منع ہے۔ سنت یہ ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کی جائے اور ضمناً قبر شریف کی بھی زیارت کر لی جائے۔ نیت باندھ کر قبر کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ میں نے دیکھا ہے، اور میں نے بعض لوگوں کو ریاض الجنہ میں اس طرح کھڑے ہوئے دیکھا ہے 1985-86 کے آس پاس میں۔ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت، پھر لوگوں سے میں نے اسی وقت پوچھا تھا کہ یہ ایسا کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے پھر آ جاتے تھے، اور اب تو دروازوں کے نام بھی بھول رہا ہوں میں، تو داہنی طرف ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر کے پھر بائیں طرف مڑ جاتے تھے، اور گھوم کر کے پھر صفہ والے علاقے سے گھوم کر کے یہ طواف کر لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا۔ اس کا پتہ چلا، اور اس کے بعد میں آگے جو راستہ ہے جو صفہ کی طرف مڑتا ہے اس راستے کو روک دیا گیا، اور ایسے لوگوں پر پولیس نظر رکھنے لگی۔ قبر کی جالیوں پر ہاتھ رکھ کر الشفاء یا رسول اللہ کی دعائی دینا تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ واپسی کے بعد صالحیت اور تقوی میں اضافہ۔ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، اب آپ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد میں آپ کی تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ کی بزرگی میں اضافہ ہونا چاہیے، دنیا کی لالچ اور حرص میں کمی، نماز کی پابندی اور خاص اہتمام، گھر کا ماحول پاکیزہ بنائے، گھر کو جنت بنائے، اور جنت ہے ہی لیکن اس کو اور زیادہ بہتر اور خوشنما بنائے، بچوں کی شرعی تربیت کریں،
बेहतरीन अंदाज में बच्चों की बच्चियों की तरबियत करें ताकि ये बच्चे बड़े बने, अच्छे बने और ये आला तालीम याफ्ता बने, नेकी के कामों में आप आगे बढ़े, बुराई के कामों से रुकें। जो लोग दाढ़ी की सुन्नत पर अमल नहीं करते थे, इस पर वो अमल करना शुरू कर दे। मैंने बास लोगों को देखा है कि वो थोड़ी सी दाढ़ी छोड़ के आते हैं, आने के बाद में फिर एक जुम्मा 2 जुम्मा और उसके बाद में फिर वो क्लीन शेव हो जाते हैं। मैंने कम से कम 2 आदमियों को तो देखा ही है, भी मस्जिद करीब में मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ। ये ठीक नहीं है और ये मुनासिब नहीं है। एक साहब को तो मैंने कह ही दिया, मैंने कहा आप हरे कब होंगे, तो शायद वो समझ नहीं सके तो मुझे देखने लगे। मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हरे कब होंगे, आपका चेहरा कब हरा होगा। तब वो समझे कि दाढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हंसने लगे और कहा इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। जो खवातीन पर्दे का एहतमाम नहीं करती थीं, वो पर्दे का एहतमाम करें। इसी तरह से तकरार के साथ मैं कहूँगा बच्चों की सालेह तरबियत करें और उन्हें दीनी तालीम से मुज़य्यन करें। बाकी आगे जिस तरह की भी तालीम बच्चों या बच्चियों को दे रहे हैं दिलाएं अच्छे ढंग से शरई दायरे में, लेकिन उनकी दीनी तालीम ऐसी होनी चाहिए कि वो नमाज पढ़ना जाने, वो तौहीद को जाने, वो अरकान इस्लाम को जाने, अरकान ईमान को जाने और दुआओं को जाने, कुरान पढ़ें और कुरान का तर्जमा भी उनको 10-5 सूरतों का बता देना चाहिए। इत्तेहाद और इत्तेफाक को लाजिम पकड़ें। इसके बाद में फिर हम चलते हैं बुखारी में, बाबो गस्लिल खलूकी सलासा मर्रातिन मिन थियाब। यहाँ से ये मसला अब शुरू हो रहा है, कपड़े से 3 बार खलूक को धुल देना। खलूक ये एक खास किस्म की खुशबू हुआ करती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसे 3 बार धुल दो। पर 3 ये कैद के लिए नहीं है। अगर एक बार ही धुलने से साफ हो गया या 2 बार धुलने से साफ हो गया तो फिर 2 बार धुल देंगे या 1 बार धुल देंगे या 3 बार धुल देंगे। ये जो हमारी रिवायत है, याला बिन उमैया कहते हैं कि मैंने उमर से कहा कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही हो तो हमें दिखा दो। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेराना में थे, आपके साथ सहाबा की एक जमात थी। एक साहब आए और कहा अल्लाह के रसूल, उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है जिसने उम्रे का एहराम बांधा और वो खुशबू में लथपथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घड़ी तक खामोश रहे और वही आई। उमर ने याला को इशारा किया, याला आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया था और साया कर दिया गया था। इन्होंने अपना सर अंदर डाला तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया था और आप खर्राटे ले रहे थे। फिर ये कैफियत खत्म हुई। आपने कहा उम्रे के बारे में जो साहब सवाल कर रहे थे वो कहाँ हैं। उनको लाया गया। तब आपने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो खुशबू है उसको 3 बार धुल दो और अपना जुब्बा निकाल दो और उम्रे में वही करो जो हज में करते हो। मैंने आता से पूछा कि 3 बार धुलने का क्या मतलब था। आपका मतलब था खूब साफ हो जाए। उन्होंने कहा हाँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।